Hi. In this video, our essay prompt is rich countries should not employ skilled labor from poor countries, as poor countries need the workers more. Do you agree or disagree? I have underlined some important words in this essay prompt like rich countries, skilled labor, and poor countries. And these are some synonyms or topic related vocabulary words, these underlined and these words. So if you want to write a good essay, you have to use topic related vocabulary words and do not repeat these words which are in the essay prompt again and again. You can use these words, but do not repetition is not allowed, because it would not be good for your band score. So first, look at the introduction. Rich countries depend heavily on cheap imported labor to increase their profit margin. स्किल्ड लेबर वो होती है जो स्किल्ड हो, जिसके पास स्किल्स हो, कुछ काम हो, मतलब उन्हें कोई काम आता हो, स्किल्स हो उनके पास. और चीप इंपोर्टेड लेबर, दीज आर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स. ये टॉपिक रिलेटेड वोकैब्युलरी वर्ड है, चीप इंपोर्टेड लेबर. क्योंकि जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ पे जो लेबर है उसकी भी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी, तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं लेबर फ्रॉम पुअर कंट्रीज, क्योंकि वो फिर चीप होगी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी उन्हें. ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, और भी जैसे ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं कनाडा में, यूएसए में इमिग्रेंट्स होते हैं यहाँ पे, और ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया वाले ये लेबर जो है वो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान. तो उनको वो चीप पड़ती है, एक्सपेंसिव नहीं पड़ती. जो अगर वो वहीं से हायर करेंगे ना वहाँ के लोकल्स को, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा. लेकिन अगर वो इंपोर्ट करेंगे ना पुअर कंट्रीज से, इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री बट लेकिन इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. एक तो वो खुद तरक्की कर रहा है, लेकिन जो यहाँ से लोग हैं स्किल्ड, एक तो लेबर भी और स्किल्ड वर्कर्स भी, वो दूसरे मुल्कों में जाके तो काम करते हैं. Okay, so for skilled labor, you can write this cheap imported labor. And for skilled labor, you can also write skilled workers, qualified workers, qualified staff, skilled workforce, skilled manpower, qualified people. These all words are synonyms for this word, skilled labor. You can use any word. आप कुछ भी use कर सकते हैं in your writing, in your speaking. स्पीकिंग में भी अगर आपको स्किल्ड लेबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप अगर एक ही वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे तो आपके लिए स्पीकिंग के लिए भी अच्छा नहीं है. यू हैव टू यूज सिनोनिम्स एंड टॉपिक रिलेटेड वोकैब्युलरी वर्ड्स. बस ये है कि राइटिंग में आपने फॉर्मल लिखना होता है, फॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए आपकी, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें. लेकिन स्पीकिंग में आप इनफॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं. But these are formal words like cheap imported labor, skilled workers, qualified staff, skilled workforce, skilled manpower, qualified people. These are all formal words. This is advanced vocabulary. और रीडिंग में भी सिनोनिम्स ही यूज़ होते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पैराग्राफ में जो आंसर आप ढूंढ रहे होते हैं. जब आप स्कीमिंग और स्कैनिंग करते हैं तो आपको मेनली जो है वो वही वर्ड तो नहीं मिलता ना आंसर में. रीडिंग में भी आपको सिनोनिम्स या उससे रिलेटेड कुछ उन्होंने घुमा फिरा के बताया होता है जिससे आपने आंसर को लोकेट करना होता है. इसी तरह लिसनिंग में भी. सो आपकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज poor countries. For poor countries, you can write developing countries, poorer nations, and dependent nations, low income countries, low wage countries. अब ये जो low wage countries है ना, this is somehow informal, तो ये आप speaking में use कर सकते हैं, ठीक है. But low income countries and dependent nations, these are formal words. You have to use them in your writing instead of writing this word poor countries again and again in your essay. So poor countries, developing countries, poorer nations, dependent nations, low income countries, and low wage countries. And here it is developing countries, and you can also write developing nations. For rich countries, you can write developed countries. Rich countries developed होती हैं. You can also write affluent countries, prosperous countries, high income countries, developed nations.
रिच नेशंस, दीज आर ऑल फॉर्मल वर्ड्स। ठीक है, ये आप अपनी स्पीकिंग में और राइटिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सो ये ऐसे जो है मैं पूरा पहले भी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, बट जो सिनोनिम्स है ये मैं इसे दोबारा बता रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में अक्सर लिखते हैं कि आपने पूरा ऐसे नहीं शो किया, तो ये पूरा ऐसे मैंने शो कर दिया। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एंड लाइक यू कैन रीड इंट्रोडक्शन, दिस बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। अगर मैं ये बार बार इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपका मेन फोकस तो ये होना चाहिए कि आपको एक टॉपिक जो है उसे टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स पता होने चाहिए और सिनोनिम्स पता होने चाहिए। बाकी तो इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने अपना ओपिनियन और अपने आइडियाज़ को लिखना है अपने वर्ड्स में, क्योंकि आप और ये जो एग्जांपल्स भी इधर दी हुई हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी, वो आप अपने पर्सनल लाइफ से भी अपनी कंट्री से भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इसलिए ये मैं पूरा ऐसे रीड नहीं कर रही इस वीडियो में। तो ये है कि आप फोकस जो है ना वो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स पता होने चाहिए, सिनोनिम्स पता होने चाहिए, आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपको सिंपल सेंटेंसेस भी लिखने आने चाहिए, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। क्योंकि अगर आप पूरा ऐसे सिंपल सेंटेंसेस पे भी लिखेंगे, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस होंगे, तो आपके बैंड स्कोर्स अच्छे नहीं आ सकते। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो ऑल टाइप्स हैं, आपने ऑल टाइप्स के सेंटेंसेस अपने ऐसे में लिखने हैं और एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, आप बस इस ऐसे को रीड करें, आप जस्ट आइडिया लें एंड देन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।